Hello everyone, welcome back once again in the English class. I hope you all are fine and you all are doing good at home, studying well, staying at home. That is all that you have to do this time. Now, in our previous classes, we read about chapter 1, that was a beautiful poem, and I hope you have understood it very well. Now, today we are going to start our second chapter, that is the power of determination. Student, all the lessons that we are doing under Unit 1, that will be concerned with determination only. You have to be very sincere in listening, and you must be very loyal, punctual to your works that has been given by your teachers. Now, let us go through our lessons. Let me first explain the topic, the power of determination. Determination, I have already explained about the word determination, दृढ़ निश्चय, संकल्प. अगर कोई भी आदमी मन में एक स्ट्रॉन्ग संकल्प, एक दृढ़ संकल्प लेंगे और कोई काम करेंगे, वो लोग, चाहे वो काम ज़्यादा बड़ी से बड़ी बहुत मुश्किल क्यों ना हो, वो उस काम पे सफल हासिल करेगा. They will get success over it. So that is the power of determination. इसी को कहता है determination का power. So let us see what we are going to learn through this small story. After reading it, we will know it. Most probably, the character may have a strong determination inside him to fulfill his work, ambition, or so on. So let us move towards our lesson. Let me read out whatever there is written inside the box. People suffering from physical disabilities or facing adverse circumstances in an attempt to overcome them turn out to be overachievers. Let us read the text and find out. यहाँ पे बॉक्स पे कहा गया है, जो आदमी अपांग होता है, डिसेबिलिटी होता है, जिसके पास हम लोग जैसा क्षमता नहीं होता है काम करने के लिए, डिफरेंट परिस्थिति से जूझने के लिए, सर्कमस्टेंसेस से जूझने के लिए, जो उन लोगों के पास पर्याप्त शक्ति नहीं होता है, क्योंकि वो उसका शरीर में वो एबिलिटी नहीं है, डिसेबिलिटीज़ है. लेकिन वैसा आदमी भी अपने जो सक्सेस पाने के लिए जो दृढ़ निश्चय लेता है, संकल्प लेता है, वो लोग जो सोचते हैं हम लोग, उससे भी ज़्यादा वो लोग को मिलता है. दैट इज़ मिराकल्स, दैट हैपन्स मिराकल्स, बिकॉज they get that thing that is impossible for them to get. At that time, only their determination has made them to that level, to achieve that level. जो वो लोग उस समय मिलता है, उन लोगों का अंदर का दृढ़ निश्चय, संकल्प ही उन लोगों को वहाँ तक पहुँचाया है, सक्सेस के ऊपर तक. सो हम लोगों को एक बीइंग learning people, we must have the positive thinking over everything. We must not have the negative feelings, so that we must say, I can do this, I couldn't do that. We must not have the feelings of I can't, so that our internal efficiency, ability may grow up to defend all the blockages that arises in our path way to success.
Now let us start the chapter. Before that, I would like to say that success, to be a successful person, it is not because of the lack of knowledge, it is not because of lack of strength, it is because of lack of will. ये कोई सक्सेस पाने के लिए जो भी सक्सेस मिल सकता है जिसको भी, लेकिन ये सक्सेस पाने के लिए हम लोगों के पास बड़ा ज्ञान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों के पास बड़ा ताकत होने की ज़रूरत नहीं है। बस हम लोगों के अंदर में एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एक विल होना चाहिए कि मैं वो काम कर सकता हूँ, ये सोच होना की ज़रूरत होता है। आके भविष्य में जाके हम लोग उस काम पे विजय प्राप्ति होंगे और हम लोग सक्सेसफुल होंगे। नाउ लेट अस मूव थ्रू आवर पैराग्राफ्स। नाउ दिस इज व्हाट the paragraph says. Let me describe it. The one-room school was heated by an old-fashioned pot-bellied coal stove. A young boy named Glenn Cunningham had the job of coming to school early each day so that he could use kerosene to start the fire and warm the room before his teacher and his classmates arrived. One cold morning, someone mistakenly filled the kerosene container he used with gasoline and disaster struck. Now, यहाँ पे एक स्टोरी है एक स्कूल का, और यहाँ पे एक बच्चा है जिसका ड्यूटी है सुबह सबसे आगे आके एक स्टॉप जो कोल से चलता है, कोल पत्थर, यू नो इट, कोयला, तो उसको जलाना है ताकि वो रूम को हीट कर सके, वार्म कर सके। इट मे बी फॉर विंटर डेज। सो एक स्कूल का चित्रण है, यहाँ पे दृश्य है, एक वन रूम स्कूल, एक स्कूल का रूम है और एक ओल्ड फैशन पॉट बेलिड कोल स्टोव, ये पुराना ज़माने में यूज़ करने वाला एक स्टोव है। उस पे एक बच्चा ग्लेन कनिंघम, उसका एक ही काम था, हर सुबह जल्दी आके उस रूम पे फायर जला के उस रूम को हीट करना, वार्म करना। और उसके बाद उसके टीचर सब आ जाता था क्लासरूम में, उसका फ्रेंड्स आ जाता था। लेकिन क्या हुआ, डिजास्टर स्ट्रक वन डे, एक समय एक बहुत भयानक हादसा घटा। वो क्या था, somebody mistakenly, वो किसी ने भूलपूर्वक जो केरोसिन का बोतल था, केरोसिन का वो गैलन था, उसके अंदर में पेट्रोल डाल दिया, गैसोलीन डाल दिया। और जब वो बच्चे आग जलाने के लिए आया तो दिस गैसोलीन इट इज़ वेरी पावरफुल इन कैचिंग द फायर, ये बहुत पावरफुल होता है, इट हैज़ अ गुड रिएक्शन टुवर्ड्स फायर। सो वो गैसोलीन के कारण वहाँ पे स्कूल पे क्या हो गया, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ डिजास्टर टुक प्लेस। द क्लास एंड द टीचर अराइव्ड टू फाइंड द, नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू all these underlined words, you must see it very carefully. You have to learn the spelling and know the meaning of it. Now let us move to the another paragraph. The class and the teacher arrived to find schoolhouse engulfed in flames. Terrified on realizing that Glenn was inside, they rushed in and managed to drag the unconscious boy out of the flaming room, more dead than alive. He had major burns over the lower half of his body and was taken to a hospital nearby. Now, it was a very disaster that was happening in the school, in that room. क्या हुआ उसके बाद में, जब ये
गैसोलीन वहाँ पे आग लगना शुरू किया। उसके बाद में उसका टीचर और उसका क्लासमेट सब आया। उस टाइम तक पूरा स्कूल का बिल्डिंग, स्कूल का रूम सब इनगल्फ्ड, आग का फ्लेम से इनगल्फ्ड हो चुका था। सब ढक लिया था आग, सब चारों ओर आग बढ़ गया था। सब डर गए, बहुत वो डर गए। और वो लोग डरते डरते दे वर मैनेज्ड टू गेट द अनकॉन्शियस बॉय हु वाज इनसाइड द रूम। वो बच्चे जो ग्लेन इनसाइड था, अनकॉन्शियस बेहोश में था, उसको बाहर लाने में वो लोग सक्षम हो गया। लेकिन जो स्थिति ग्लेन का था, वो नो वन कैन से दैट वेदर ही वाज अलाइव और डेड। सो हिज लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये नीचे का जो भाग होता है, वेस्ट से नीचे का जो भाग, सब वो क्या हुआ था, डिस्ट्रॉयड हो गया था आग के कारण। सो ही वॉज हर्डली टेकन टू द नियर बाय हॉस्पिटल। नज़दीक का हॉस्पिटल में जल्द से जल्द उसको पहुंचाया गया था। फ्रॉम हिज बेड the dreadfully burned semi-conscious Glenn faintly heard the doctor talking to his mother. अब जब वो हॉस्पिटल में था, बेड में था, और उसका शरीर एकदम ड्रेडफुल अवस्था में था, बहुत भयानक, वो और अर्ध कॉन्शियस, वो आधा, वो होश में भी नहीं था और बेहोशी में भी नहीं था, वो आधा सेमी कॉन्शियस था। उस टाइम उसने सुना, कान से सुना कि डॉक्टर उसका माँ से कुछ बातें कर रहा है। अब वो बातें क्या है देखते हैं, डॉक्टर मम्मी से क्या बातें कर रहा है। द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर दैट हर सन वुड श्योरली डाई, which was for the best, really, for the terrible fire had devastated the lower half of his body. अब जब ये बच्चे ने, जब आप कॉन्शियस सेमी कॉन्शियस में जब ये बातें सुना डॉक्टर और माँ के बीच में, तो डॉक्टर कह रहा था आपका बच्चे अब जीवित नहीं रहेगा, बिकॉज टोटली हिज बॉडी इज डिवास्टेटेड, डिस्ट्रॉयड, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुका है। उसका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, बर्बाद हो चुका है आग के कारण। सो ही मे नॉट सर्वाइव। ऐसे करके बातें करते हुए उसने सुना। बट द ब्रेव बॉय हेल्ड ऑन टू लाइफ, ही डिडंट वांट टू डाई। ग्लेन मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव, एंड समहाउ टू द अमेजमेंट ऑफ द फिजिशियन he did survive. Yet when the mortal danger was past, he again heard the doctor and his mother speaking quietly. The mother was told that since the fire had destroyed so much flesh in the lower part of his body, it would almost be better if he had died, since he was doomed to be a lifetime cripple with no use at all of his lower limbs. His mother refused to let the doctors amputate. Now यहाँ पे जब बच्चे माँ और डॉक्टर बातें करते हुए सुना था, तो उस टाइम डॉक्टर बोल रहा था कि आपका बच्चा जो कम्प्लीटली उसका लोअर पार्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो सर्वाइव करने की लायक में नहीं है, शायद ये बच्चे मर भी सकता है। उस टाइम पे जब ये बच्चे ने सुना तो वो थोड़ा सा घबराया और उसने मन ही मन में एक दृढ़ संकल्प लिया कि मुझे जीना है, आई वॉन्ट टू सर्वाइव, मुझे बाँचना है, मुझे जीवित रहना है, मुझे मरना नहीं है। सो जब ये निश्चित उसने मन में जीने का जो इच्छा जागृत किया, फॉर द अमेजमेंट एक मिराकल वहाँ पे हैपन हुआ। जो डॉक्टर हार चुके थे, वही डॉक्टर को एक प्रकार का आश्चर्यचकित हो गया कि वो बच्चे सरवाइव कर दिया, उसने डेथ, एक मृत्यु को पराजित कर दिया। और जब ये मोर्टल डेंजर का मतलब होता है जो खतरा जान भी ले सकता था, वो समय जब पास हो गया, तो उसके बाद में क्या हो गया, अगेन देयर वाज अ कन्वर्सेशन बिटवीन हिज मदर एंड द डॉक्टर। ओके, दे वर स्पीकिंग क्वाइटली, वो लोग शांति से वो बातें कर रहा था। लेट अस सी व्हाट दे वर टॉकिंग।
डॉक्टर ये कह रहा था उस टाइम पे द मदर को कि आपका बच्चे को फायर ने इतना क्षति किया है, ही हैज़ द फायर हैज़ डिस्ट्रॉयड योर सन, योर द लोअर पार्ट इज कम्प्लीटली डैमेज। सो इसके लिए आपको क्या करना है, आपका एम्प्यूटेट, इसका मतलब होता है आपका बॉडी का जो अनवांटेड, जो डिस्ट्रॉय हो चुका पार्ट को क्या करना है, काट के फेंक देना है। जब यही बातें डॉक्टर और मदर के बीच में चल रहा था, ओके, क्योंकि जो बच्चे था उसका जो लोअर पार्ट का था फायर ने पूरा कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया था। एंड डॉक्टर वॉज श्योर, और ये सबको निश्चित था कि वो बच्चे अब ज़िंदगी भर चल नहीं पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा, देयर विल बी नो मूवमेंट इन हिज लोअर पोर्शन ऑफ हिज बॉडी। सो ये सब कुछ होते होते हुए भी एक डॉक्टर ने उसका मांस जो डिस्ट्रॉयड पार्ट फ्लेश काटने के लिए कहा, फेंकने के लिए कहा, तो मदर ने, जो मदर है उसका बच्चे लड़के का मदर है, उसने क्या किया, रिफ्यूज़ किया, वो काटने के लिए तत्पर नहीं हुआ। Once more, Glenn strengthened his resolve that he would not be a cripple confined to a wheelchair. उस टाइम भी जब ये सब घट रहा था हॉस्पिटल के वो रूम में, जब डॉक्टर और मम्मी का ये बात सुना, तो बच्चे के अंदर में अभी तक हिम्मत नहीं हारा है। वो अपना जो डिटर्मिनेशन है जीने का, वो उसने खोया नहीं है, लेकिन ये तो और पावरफुल होते गया कि अरे बाप रे, मैं ऐसे, जो डॉक्टर कह रहा है, जो ये लोग कह रहा है कि मैं ज़िंदगी भर चल नहीं पाऊँगा, नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दूंगा, मैं ये व्हीलचेयर में ही निर्भर नहीं रहूँगा ज़िंदगी भर। आई विल वॉक, आई विल रन। दैट वॉज हिज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एक अंदर का दृढ़ संकल्प था। अब ये बच्चे जो संकल्प लेता है, मे इट कम ट्रू और मे इट नॉट कम ट्रू, अब ये निश्चित जो निश्चय लिया था शायद ये पूरा होता है या नहीं होता है। लेट अस सी नाउ। He would walk, but unfortunately he had no motor ability from the waist down. His thin, scared legs just dangled there, all but lifeless. Now, यहाँ पे जो बच्चे का ये जो अवस्था हुआ, जो घटना घटा, इट वॉज वेरी टेरिफिक, बहुत भयानक था। तो ये सब घटने के बाद बच्चे के अंदर में हिम्मत नहीं हारने की वजह उसकी हिम्मत तो और बढ़ते चला गया, उसका डिटर्मिनेशन बढ़ते गया, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन उसके अंदर में और बढ़ते गया। और उसने संकल्प ये भी लिया कि मैं जो ये सब लोग कह रहा है उसको मैं निष्फल कर दूंगा और मैं एक दिन चल के दौड़ के दिखाऊंगा। सो मैं ये व्हीलचेयर में ही निर्भर नहीं रहूँगा। तो उसके अंदर में जब ये जज्बा था, जब ये इंटरेस्ट, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स था, तो वो सेल्फ एक कोशिश करता था। ही वुड वॉक बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड नो मोटर एबिलिटी फ्रॉम द वेस्ट डाउन। वो कोशिश करता था चलने के लिए, लेकिन क्या करे, उसका जो मोटर एबिलिटी का मतलब होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो चलने का क्षमता, जो वेस्ट अपना कमर से नीचे, ये तो पहले ही हम लोग बता चुके हैं कि उसका जो लोअर पार्ट सब डिस्ट्रॉयड हो चुका है। दो इट इज़ द पार्ट इज़ देयर बट इट कांट वॉक प्रॉपरली एज अ नॉर्मल पर्सन। सो एट दैट टाइम उसका वो चल नहीं पाते थे because his motor ability was not there. His thin, scared legs just dangled there, all but lifeless. उसका जो पतला पतला जो लेग्स था, पैर, वो क्या करता था, डैंगल, हिलता था इधर उधर, जैसे सपोर्टिंग लेने के लिए लड़बड़ाना कहता है ना, ऐसे वो लाइफलेस, ताकि उसके अंदर में लाइफ ही नहीं है। जो जिसको जिधर जिस डायरेक्शन में ले जाए वही डायरेक्शन में चले जाना, डैंगल, इधर उधर जो लाइफलेसली मूवमेंट दिखाना। सो नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पैराग्राफ।
Eventually, Glenn was released from the hospital. Every day afterwards, his mother and father would massage his little legs, but there was no feeling, no control, nothing. Now, इवेंचुअली वही प्रक्रिया चलते चलते हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज हो गया, और डिस्चार्ज होने के बाद दिस बॉय ही वॉज टेकन केयर बाय हिज मदर एंड फादर. वो दोनों बहुत ख्याल रखते थे. उसका जो बहुत आग से जला हुआ जो लेग्स है, जो अभी अभी बहुत थिन हो चुका है, पतला हो चुका है, उसको वो मालिश करते थे. बट ऑफ नो यूज़, बिकॉज देयर वॉज नो फीलिंग्स, नो कंट्रोल, नथिंग. कुछ भी उसमें प्रभाव नहीं होता था. Yet his determination that he would walk was as strong as ever. No, लेकिन जब ये सब होता था, मम्मी डैडी मसाज करते थे, थक जाते थे, लेकिन ये बच्चे जो सोच उसके अंदर में जो डिटर्मिनेशन है, कभी हारते नहीं था, उसके और बढ़ते जाता था. उसका जो अंदर का विल है, डिजायर टू वॉक, रन एंड टू प्रूव to be able once again, that was strong inside him. So this was the lesson that we have done today. This was first page and the first paragraph of second page. This is part A section of your class. In part B we will be continuing more remaining parts of the lesson. Now today, whatever we did in the class, whatever we learned in the class, you have to go through the lesson, you have to read it and see all the words, difficult words, learn the spelling and try to find out the meanings. And student, be careful, the reading is most important, plus the writing. If there is no reading and writing in English, then you will not be able to learn English. You will forget each and everything. So I request all the dear students, at your home, try to revise the grammar that you have been taught. Revise it, not only by orally, but you in the writing process also. You keep yourself fit, keep yourself proper. That is where you can learn at home in this very much terrific situation. Stay well at home. In our next class we will be doing remaining part. Till then, have a nice evening.